دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہلو برائیلیت احمد بھائی اتنا بڑا لعنت دیا کہ ان کا توفیق نہیں پانے۔ ہلو ہلو سب بولیے، سن رہے ہیں۔ ہلو، ہاں بولیے بھائی۔ ہاں تو کتنے ہیں دیوبندی؟ کتنے ہیں؟ دو؟ نہیں، ہم دو لوگ ہیں، بولیے۔ دونوں دیوبندی ہیں؟ نہیں، ہم لوگ سنی ہیں، اصلی سنی ہے، اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت تو سیاہ بھی کہتا ہے اپنے آپ کو، سیاہ کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ سیاہ کو کہتا ہے، یہ کب سے آج تک وہ سیاہ اپنے آپ کو روافض کہتے ہیں۔ میں نے روافض نہیں، وہ بھی اہل سنت والجماعت کہتا ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، بولیے۔ جو ہے اچھا، میں یہ بول رہا تھا ہاں بولیے۔ کہ یہ تھانوی وغیرہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب عالم سمجھتے ہیں کہ اچھا خاصا جاہل؟ اس کو تھانوی؟ یہ کون تھانوی مطلب؟ یہ اشرف علی تھانوی صاحب کی بات کر رہا ہوں میں۔ مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ؟ ہاں 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 یہ تو اللہ کے ولی تھے، ان سے وہ کہا۔ وہ تو کہتے ہیں وہ سور سے بدتر تھے۔ کون کہتا ہے؟ تھانوی صاحب۔ شیعہ لوگ کہتے ہیں سور سے بدتر ہیں۔ اب بھائی میں تھانوی کی کتاب میں پڑھا ہوں، انگریز ہو گئے، شیعہ ہو گئے، کافر ہو گئے۔ تھانوی صاحب کی کتاب میں پڑھا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یقین نہ آئے حلق اٹھوا لو، وہ کتا اور سور یعنی دونوں سے بدتر۔ اگر خالی کتا کہے ہوتے تو کتے سے مراد بہادری ہوتی۔ ایک بات ہماری سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ دنیا میں کر رہے تھے، صحابہ کر رہے تھے، ان کو بہت گالی مل رہی تھی، سب گالی دے رہے تھے۔ ارے اچھا، یہ اگر آپ کے نزدیک واقعی میں گالی ہے تو پھر آپ کے حکیم الامت جو ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے ولی ہیں، وہ پکے گالی باز ہیں، کیونکہ ہم ناقل کی حیثیت سے نقل کر رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کی کتاب سے کہہ رہے ہیں بھیا۔ نہ عبداللہ صاحب، یہ پکے گالی باز اشرف علی تھانوی صاحب تھے، یہ ان کا ہی جو ہے فالوور کہہ رہا ہے۔ میں بھیجو، ہم دیکھیں۔ ابھی وہی جو تمہارے ساتھ بندہ بول رہا تھا کہ پیجامہ ٹخن نیچے پہنے تھے، ہم نے کہا حدیث پیش کرو، تو اردو پڑھ کے بتا رہا ہے۔ نہیں، عربی میں حدیث بتاؤ جو عربی ہو کہ ہاں ان صحابی سے مروی ہے، جیسے ہم بتا رہے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں رہے گا۔ ہم نے حدیث بتا دیا، آپ وہ بھی ایسی حدیث کوئی پیش کری جو ٹخن نیچے والی ہو، وہ تو اردو پڑھ کے بتا رہا ہے، جس طرح بدعتی قبر پجاری جس طرح بتاتا ہے۔ نہیں، قبر پجاری اب یہ کہاں کے بات لے آئے؟ قبر پجاری لوگ پہنتے ہیں ٹخنے سے پجامہ، وہ لوگ کہتے ہیں نیچے پہن۔ وہی ہم نے اس سے کہا حدیث پیش کرو، اس نے حدیث نہیں پیش کی۔ آپ جو حدیث قبر پجاری والی، کیونکہ پہلے یہ بتائیے۔ نہیں، میں نے پڑھا تھا فضائل اعمال وغیرہ میں نے پڑھا ہے، اور حاجی امداد اللہ مجاری مکی صاحب کی میں نے کتاب پڑھی ہے، تو پھر آپ کے وصول سے وہ بھی قبر پجاری رہے ہوں گے۔ نہیں، قبر پجاری کی بات نہیں، پہلے بتائیے جو آپ نے کہا گھٹنے کے نیچے ٹکنے کے نیچے جو آپ پائجامہ پہنتے ہیں قبر پجاری ہیں۔ نہیں، قبر پجاری لوگ ایسا کہتے ہیں۔ قبر پجاری لوگ قبر پجاری لوگ ایسا کہتے ہیں، قبر پجاری سے مراد کیا ہم ہے؟ اس لیے کہہ رہے ہیں، سنیے ہم بتائیں، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہماری طرف ایک مزار ہے، وہ لوگ قبر پوجا کرتے ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ کر لگاتے ہیں، وہ لوگ بہت نیچے پہنتے ہیں پیجامہ، تو وہی لوگ کہتے ہیں نیچے پہننا چاہیے، اس لیے ہم وہ بات کہہ رہے ہیں قبر پجاری لوگ کہتے ہیں کہ ٹخنے سے پیجامہ پہننا چاہیے۔ اسی طرح آپ کے حضرت مولانا عبداللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں ٹخنے سے پیجامہ پہننا چاہیے، اس لیے ہم ان کی مثال دے رہے ہیں۔ جو ہے ٹخنے سے اوپر پیجامہ پہننے جانتے ہیں۔ بھائی کون سا مزار ہے آپ کے یہاں؟ کس کا مزار ہے؟ کئی مزار ہے یار، کس کا مزار؟ کچوچا شریف اور اجمیر ہے، اتنا بڑا مزار ہے۔ ہم گرین ہوا دلی نظام الدین ہوا مزار ہے، نہیں منتے سب مزار کا، ہم آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں، جو مزار پہ تھا اس مزار کو کہہ رہے ہیں۔ نہیں، آپ اتر پردیش کے رہنے والے ہیں شاید؟ ہاں۔ کہاں کے؟ سلطان پور۔ اچھا، سلطان، میں بھی بغل میں ایودھیا میں ہوں ابھی۔ مجھے یہ بتائیے، کچوچا جانے والا، اجمیر جانے والا، وہ قبر پجاری ہو گیا؟ ارے میرے بھائی، اجمیر جانے والے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، آپ سمجھتے کیوں نہیں رہے؟ آپ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، بس الٹا سمجھتے ہیں۔ اچھا، ہمارے سلطان پور کبھی آئے ہیں آپ؟
हाँ गया हूँ वहाँ। मऊहरिया गए हो कभी? नहीं, वहाँ इस्लामपुरा में गया हूँ। मऊहरिया नहीं गए हो ना? नहीं। मऊहरिया में एक मजार नहीं, 2 मजार है। जो भी है हम बता रहे, जो आप सवाल कर रहे हैं जवाब दे रहा हूँ। 2 मजार है, दोनों पैजामा मेरे भाई ऐसा पहनते हैं ना कि क्या बताएं। और हम लोग पैजामा पहनते हैं। हाँ पैजामा पहनते हैं। हमें मेरे भाई ऐसा पहनते हैं, कपड़ा टखनक नीचे क्या जू तक नीचे रहता है। तो हम लोग दो मजार है तो वहाँ पे जो टखनक नीचे पहने वो कबर पुजारी हो गया। मैं ये कह रहा हूँ। अरे वही पूजा करता है, वहाँ सजदा करता है, लोगों को करवाता भी है। समझा? भैया हम आपकी बात समझ रहे हैं। हमने आपकी कबरदारी कहा नहीं, हमने सिर्फ मिसाल दिया। आपने हमें नहीं कहा तो हम भी आपको नहीं कह रहे हैं कि आपने हमें मिसाल दिया, लेकिन मिसाल आप ही के, उनकी मिसाल आप पर फिट किया, क्योंकि आप कह रहे हैं सिर्फ नीचे पहन सकते हैं। जब सबूत मांग रहे हैं, सबूत दे ही नहीं पा रहे हैं, तो सबूत दे दीजिए। उनकी तरह मत कि वो लोग सबूत नहीं देते, यही कहते हैं नहीं पहनना चाहिए बस। तो आप सबूत दे दीजिए प्यार से, बस हदीस पढ़ के बता दीजिए। जैसे हमने बता दिया मासर मिनल काबिल मिले ज़रफिन्नार, वैसे आप पढ़ के बता दीजिए। नहीं आपने क्या बताया अब्दुल्ला भाई को? इस तरह तो बताने में तो बहुत कुछ नहीं बता। अब्दुल्ला भाई को क्या बताया आपने? अब्दुल्ला भाई छोड़िए, अब्दुल्ला भाई तुतुराते हैं। पहली बात, अब्दुल्ला भाई तुतुराते हैं, उनकी बात समझ में आवत नहीं। नहीं अब्दुल्ला भाई छोड़िए, वो बराबर उनकी आवाज सही नहीं है। अच्छा आप बताओ कि जो ना है टखना से ऊपर पैजामा पहले क्या नीचे? कपड़ा देखिए कोई भी पहनिए, कपड़ा चाहे टकने के ऊपर पहनिए चाहे टकने के नीचे। हमने नीचे पहनने की हदीस पढ़ी है। आप कौन सी टकने नीचे रहेगा? उस हदीस से मुराद क्या है? नीचे पहन सकते हैं भैया उस टकने से मुराद क्या है? बीच वाला टकना या पैर के ऊपर है टखनस मुराद? पगलू, टखनस मुराद जो हमारा ये टखना जहाँ तक वजू के फराइज है वो धुलते हैं, उसको टखना कहते हैं। टखना तो हम वही आपसे मुराद पूछ रहे हैं भैया कि आप मुराद कुछ नहीं है, टखना है। टखना वजू में जो फराइज पे जो धुले जाते हैं वही मुराद है टखना। अब बताओ। तो उससे नीचे जो पहने वो जहन्नमी है। जहन्नमी हम नहीं कह रहे, हदीस बता रहे हैं वो। अरे हदीस आप बता रहे हैं, हदीस तो शिया भी पढ़ता है भैया, कुरान भी शिया पढ़ता है। वो गरीब आदमी है भैया। इस हदीस की तरह में कितने मुहद्दिसीन ने कहा है कि जो इससे मुराद यही है जो आप ले रहे हैं, मुझे ये बताएं। अदर इससे मुराद क्या है फिर आप बताइए। अरे हम क्यों बताएं यार, आप हदीस पढ़ के इस्तेमाल कर रहे हो तो पूरी तरीके से आप समझाओगे कि अब आप इस्तेमाल करो, हम समझाएं आपको। ये कौन सी बात होगी? अच्छा एक बात बताइए, वजू में जो है टखने से पैर धुलना फर्ज है? आप जी से मेरी बात हुई तो अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसल आदमी तो छोड़ो, मुसलमान भी नहीं है। हज़रत अमीर माविया वो राफजी इस्तिदलाल कर रहा था सूरह निसा नंबर 20 से, तो वैसे ही इस्तिदलाल आप जो बंदियों का है। अब मैं पूछ रहा हूँ हेलो हाँ हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु आप क्या बोले? हम नहीं बोले, तो एक राफजी था उससे मेरी बात हो रही थी। अरे राफजी तो भले उनको गाली देते हो। हाँ तो वही वो भी ऐसे ही आप ही की तरह इस्तिदलाल कर रहा था। इस्तिदलाल एक चीज है, कुरान हदीस में अकल नहीं चलता है। हदीस अगर इससे इसकी शरह में कितने मुहद्दिसीन ने कहा है कि इससे मुराद वही है जो आप ले रहे हैं। आप बात नहीं समझे। देखो ये हदीस हमारी बात सुनिए, हमारी बात हदीस है मा असफल मिनल काबैन लिजारी फिन्नार, जो हिस्सा पैजामे का जो हिस्सा टखनों से नीचे होगा वो जहन्नम में रहेगा। है कि नहीं ऐसा? है कि नहीं ऐसा? हदीस तो है। नहीं ये तर्जुमा उसका जो मैंने किया गलत किया सही किया? भाई तर्जुमा आपने सही किया, हदीस भी सही किया, लेकिन इससे मुराद क्या लिया मुहद्दिसीन ने? हाँ तो बताइए क्या मुराद लिया? आप बताइए, हम क्यों बताया? आप तो अहले हदीस वाली हरकत कर रहे हो, अहले हदीसों वाली पढ़ लिए और समझ लिए। नहीं आप बिल्कुल वही कर रहे हो। आपने किसी मुहद्दिसीन का जो है शरह और मनहज जो है इस हदीस से मुराद लिया है। रफलिया दैन की बहुत सारी हदीसें हैं। बड़े बड़े जो अल्लाह वाले थे, मतलब सुनो, एक हमारे उस्ताद है। हेलो ये
एक हमारे उस्ताद हैं, वो भी सुन्नी है, मतलब है लंगवा की ही, मतलब लंगवा आप शायद जानते होंगे। वो नमाज में जो अपना पैजामा है ना ऊपर कर लेते थे, नमाज के बाद नीचे कर लेते थे, समझे भाई हमने ये नहीं कहा, हमने हमारे उस्ताद थे, सुनिए हमने उनसे कहा मौलाना आप जैसे बरेलवी हजरात टकने के ऊपर पैजामा नहीं पहनते, हल्का नीचे पहनते। हाँ बिल्कुल नीचे पहनते, हाँ तू पहनते हैं ना। अब आपके जो आपने जो हदीस बयान की है उस हदीस के उसूल से उनका वो हिस्सा जहन्नमी है, हाँ है ना। आप बताएं मुझे, वही मैं पूछ रहा हूँ कि मामला यहाँ ये फंस रहा है कि आपने जो हदीस बयान की है इसको मुहद्दिसीन ने किस तरह समझा है। वही जो हमने बताया। अब मैं एक मिसाल की, अच्छा वही उसी तरह समझा, कौन से मुहद्दिसीन ने समझा बताइए। आप बताएं। अरे यार आप बताएं, हम क्यों बताएं। नहीं हमको इतना नहीं मालूम, हम लोग आलिम थोड़ी। मालूम कर लीजिए, फिक़ह पढ़ लीजिए, मुहद्दिसीन का इस्तिदलाल इस्तिंबात पढ़ लीजिए, तब आप बहस किया करिए ना। बेवजह क्यों बहस कर रहे हो आप। मतलब आप फोन करें, आपका क्या मतलब है, मतलब कि हम लोग पूरी तरीके से इस्तिदलाल किया करिए। अच्छा आप सुनो, मैं आपको बताता हूँ। नहीं ये बताइए, मैं बता रहा हूँ, आपको सुनोगे। बोलो। मत बोलिए अहले हदीसों की तरह। आप लोग आधे अहले हदीस हो, आधे देवबंदी हो। नहीं बोलो। ना इधर के हो ना उधर के हो। बोलो। अब सुनो, हाँ रबुलिया दैन की कई सारी हदीसें आई हैं। हाँ हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कई सारी हदीसें रिवायत है, लेकिन फिक़ह हनाफ उस पर अमल क्यों नहीं कर रहा है। अब हूँ क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहा है बताओगे। एक मिनट बोलो, हाँ लेट गए, बोलो एक काम कर रहे थे, बोलो क्या कौन सी बात बोले। मैं कह रहा हूँ जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रफ़िया दैन के ताल्लुक से बहुत सारी हदीसें आई हैं। रफ़ा दैन के ताल्लुक से, हाँ तो हाँ, लेकिन फिक़ह हनाफ उस पर अमल नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं करता। हाँ हम लोग नहीं करते, आप भी नहीं करते हैं, हम भी नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। मुझे मुहद्दिसीन ने इस हदीस को, सुनो यार, मुहद्दिसीन ने इस हदीस को काबिल कबूल नहीं किया, इसलिए कि उस हदीस में इस्तराब है। हाँ बिल्कुल। इस्तराब समझते हैं। हाँ उस शुरू में मतलब आया था। हाँ क्या है इस्तराब का मतलब, क्या है मतलब शुरू में जब उस हुआ था मतलब ना, तो रफ़ा दैन कर रहे थे, इसरा कर रहे थे ना। इस्तराब का मतलब पूछ रहा हूँ आपसे। इस्तराब नहीं हम नहीं जानते इस्तराब। तब आप फिर जानते क्या है। हम लोग क्या बताए, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है तो कोई भी फोन करे आपको या कोई भी मसले मसाइल पे बहस करे या कुछ आपको बताए तो उसको चुपचाप सुन लो और कह दो कि भैया हम ठीक है देख लेंगे, मतलब की तहकीक कर लेंगे और तहकीक करके फिर बात किया करो, ठीक है। बेवजह दीन का बेवजह नुकसान मत पहुंचाओ। नहीं बात आपकी ठीक है। तो आप ये बताइए, आप नीचे पहनते हैं ऊपर पहनते हैं, ये सब बात की जो कुरान हदीस है वही टकना नीचे पहनते हैं ऊपर पे। मैंने कहा मुहद्दिसीन ने किस तरह समझा है वो आप बता नहीं पा रहे हो। करते हैं फिर कहते हो हम कम पढ़े लिखे, हमें उतना आता नहीं है। अब आपको हम कैसे बात करें, किस हिसाब से बात करें, आपको इस्तराब का भी मायना समझ नहीं आ रहा है। ये बताइए अब्दुल्ला क्या भाई करते हैं, हदीस पे अमल करते हैं। मैं काम कर रहा हूँ अब्दुल्ला भाई, मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा नट बोल्ट खोला हूँ और इनसे बात करना बेमतलब का बात है, क्योंकि ये जाहिल नहीं, जाहिल मुतलक है, कुछ आता जाता नहीं है इनको। और आप बाद में फोन करना मुझे, बाद में बात कर लेंगे अब्दुल्ला भाई।